السلام علیکم۔ ہر شہر ہر خبر کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ ملک بھر کی طرح چکوال میں مہنگائی کا طوفان ہے، جہاں روزمرہ اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اشیاء خورنوش، ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں اور موجودہ حالات میں جینا دو بھر ہو گیا۔ چکوال کی منڈیوں اور بازاروں میں اشیاء ضروریہ جیسے سبزیاں، دالیں، آٹا، چینی اور دیگر بنیادی ضروریات کے نرخ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ چکوال کے مختلف علاقوں میں مہنگائی کا اثر واضح طور پر نظر آ رہا ہے، جہاں منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں بے قابو اضافے سے ان کی زندگی کے معمولات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو مناسب خوراک اور تعلیم فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ چکوال کے شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس دینے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی مختلف شاہراہوں پر لگائی گئی کیٹ آئیز ریفلیکٹرز ٹریفک کی روانی میں مسائل کا سبب بننے لگے۔ غیر معیاری کیٹ آئیز ریفلیکٹرز جگہ جگہ سے اکھڑ گئیں، جس سے موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے ٹائرز پھٹنے لگے۔ دیکھیے آصف ندیم کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چند روز قبل حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے کے سلسلہ میں بائی پاس چوکوں میں مین شاہراہوں جنگ روڈ، گوجرا روڈ، شورکوٹ روڈ اور رجانہ روڈ پر لگائی گئی کیٹ آئیز ریفلیکٹرز ٹریفک کی روانی میں مسائل کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ حادثات کا باعث بننے لگیں۔ غیر معیاری کیٹ آئیز جگہ جگہ سے اکھڑ گئیں۔ کیٹ آئیز کے کیل باہر نکل آئے۔ کیٹ آئیز سے موٹر سائیکلوں، رکشوں اور گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے لگے۔ اس سلسلہ میں شہریوں کی گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے اور ٹائر خراب ہونے کی شکایات بڑھ گئیں اور شہریوں کا کہنا تھا کہ غیر معیاری کیٹ آئیز ریفلیکٹرز کی تنصیب سے فائدے کی بجائے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جانتے ہیں ایک شہری سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ ادھر سے گزرے ہیں تو یہ کیل کی وجہ سے نا ہمارا ٹائر جو نا وہ نا پھٹ گیا ہے اور ہمارا نا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بہت زیادہ نا بچے ہیں ہم لوگ۔ تو ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ وہ نا اس روڈ کی توجہ کریں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو سے اس سنگین مسئلہ پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف ندیم، ABN نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ پنجاب میں اسموگ اور خطرناک حد تک فضائی آلودگی میں اضافہ۔ کھاریاں تحصیل انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث کوڑے کو آگ لگانے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ دیکھیے جہانگیر کیانی کی یہ رپورٹ۔ پنجاب میں اسموگ اور خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باوجود کھاریاں تحصیل انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو آگ لگانے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ کھاریاں شہر اور گرد و نواح میں جگہ جگہ لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں پڑی غلاظت سے اٹھنے والی بدبو اور تفن سے شہریوں کا یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ گندگی اور بدبو کی وجہ سے شہری گلے اور سانس کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ستھرا پنجاب کے احکامات کو تحصیل انتظامیہ نے صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود کر رکھا ہے۔ شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ ان کام چور افسران کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے اور عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانگیر کیانی، کھاریاں۔ حافظ آباد میں حکومت کی جانب سے اسموگ ایمرجنسی کے باوجود ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی نااہلی کے باعث سے جگہ جگہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسموگ کی خطرناک صورتحال ضلع بھر میں دھان کی فصل کٹائی کے بعد اس کی باقیات کو جلانے والے باز نہ آئے۔ جس جانب دھوئیں کے بادل نظر آتے ہیں، شہری گلے، سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات صرف فوٹو سیشن تک محدود۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس دینے کی اپیل کی ہے تاکہ شہری سکھ کا سانس دے سکیں۔ فیروز والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور محکمہ ماحولیات کے لیے بڑا چیلنج۔ شاہدرہ میں ڈائنگ فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے آبادی کے بے شمار لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ملک زمان شاہین کی رپورٹ۔ ایک جانب صوبائی دارالحکومت لاہور شہر کو عالمی ادارہ صحت نے دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر قرار دے دیا، جبکہ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کے افسران اور جوان خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ شاہدرہ میں ڈائنگ فیکٹریز کے نام پر شہریوں کو موت بانٹی جا رہی ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں ایک تو سموک کا باعث بن رہا ہے،
जबकि वही धुआं अहले इलाका के लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब भी बन रहा है, जिनमें कैंसर, दमा, स्किन एलर्जी और पिपरों की बीमारियां शामिल है। शहरियों के मुताबिक महकमा माहौलियात के अफसरान को बार बार इतला देने के बावजूद भी अफसरान फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं, और अगर कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो कुछ दिन बाद रिश्वत देकर दोबारा फैक्ट्रीज को खोल लिया जाता है। 3 फैक्ट्रियां यहाँ पे मौत बांट रही हैं। यहाँ पे जो आपके दाएं बाएं मुकामी अफराद हैं, यहाँ पे जो स्किन एलर्जी, दमा और कैंसर के पेशेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। सिर्फ इन फैक्ट्रियों की वजूहात है ये तमाम जो ये बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पर बार बार हमने दरख्वास्तें दी हैं, मुख्तलिफ महकमों को ऑनलाइन एप्लीकेशन दी हैं। शादरा में बेशुमार ऐसी फैक्ट्रीज इस वक्त फाल हैं जो कि एक तो शहरियों को बीमारियां बांट रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के कानून को खुल्लम खुला चैलेंज कर रही है। यहाँ के जो शहरी हैं वो यहाँ पर सांस की बीमारी, दमे की बीमारी और यहाँ पर कैंसर के और खास तौर पर एलर्जी के यहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, और शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन फैक्ट्रीज के खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए और यहाँ पर शहरियों को मौजूद रहने का माहौल फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मलिक जमान शाहीन, ABN न्यूज, फिरोजवाला। मुल्तान में चुंगी नंबर 8 सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ट्रैफिक के मसाइल से शहरी सख्त परेशान और नाला। मुल्तान से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख की रिपोर्ट देखिए। चुंगी नंबर 8 की सीवरेज लाइन को मेन डिस्पोजल स्टेशन से जोड़ने के लिए 3 अरब रुपए के मंसूबे पर काम जारी है। सीवरेज लाइनें बिछाने की वजह से चुंगी नंबर 8 की एक सड़क को बंद कर दिया गया। कचहरी चौक, बोसन रोड और चुंगी नंबर 9 की तरफ जाने वाली ट्रैफिक जबरदस्त दबाव के बाद सारा दिन गाड़ियां फंसी रहती हैं। शहरी ट्रैफिक जाम पर शदीद नाला और परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि ट्रैफिक घंटों फंसी रहती है, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं होता। ट्रैफिक को, राहगीरों को गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। मैं मुल्तान की ट्रैफिक पुलिस को और जिला इंतजामिया से गुजारिश करूंगा यहाँ पर वार्डन की ड्यूटी लगाई जाए ताकि लोगों को रास्ता बनवाने में आसानी हो सके, और लोग जो है घंटों यहाँ पर लाइनों में कतारों में खड़े रहते हैं वो आसानी से यहाँ से गुजर जाएं। गर्द गुबार की वजह से लोगों को सांस की तकलीफ हो रही है और सेहत के हवाले से भी इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पे अपना ये काम जल्दी मुकम्मल करें ताकि लोगों को जो घरों के अंदर भी सीवरेज के मसाइल उनको पैदा हुए हैं वो भी ठीक हो जाएं, और गलियों में बड़ा गंदा पानी खड़ा हुआ है ताकि वो भी जल्दी जल्दी जो है ना ड्रेनेज का सिस्टम उसका बेहतर हो सके। मंसूबे के बायस खुदाई से गर्दो गुबार का राज, सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। शहरियों ने मंसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। इस मंसूबे की वजह से चुंगी नंबर 8 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और ट्रैफिक हुकाम से भी मुतालबा किया है कि मुतबादल रूट्स बनाकर उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़, मुल्तान। रायवंड में आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेशन पर गैर मुल्की मेहमानों के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिया गया। देखिए तलहा शेख की ये रिपोर्ट। तबलीगी जमात का आलमी इज्तिमा रायवंड में शुरू हो चुका है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों अफराद पहुंच चुके हैं। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनों में मंदूबीन की कसीर तादाद इज्तिमा में शिरकत कर रही है। हमारी इस्तकबालिया जमात रायवंड शहर की हर साल अल्लाह के फजल से आपस में मिलकर बैरून से आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप कायम करती है, और जितने मेहमान कोयटा के रास्ते से, तुर्क हजरात, ईरान के और कराची से बेशुमार मुल्कों के 25-30 ममालिक के, मिस्र के अरब हजरात ये तशरीफ़ लाते हैं, और यहाँ जब उतरते हैं हम उनको सामान समेत लेकर अपने पास बिठाकर उनका इकराम करते हैं, खाना खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। इसके बाद फिर उनको अपनी गाड़ियों में बिठाकर हम पेंडाल जो इज्तिमा गया है वहाँ लेकर जाते हैं। रेलवे पुलिस की जानिब से अजाफी नफरी की तैनाती के साथ वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं। इज्तिमा की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे हमने अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक काफ़ी सख्त इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे कमांडोज तैनात किए गए हैं, ट्रेनों के साथ भी सिक्योरिटी लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पे वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी किस्म का सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला दरपेश ना हो। इज्तिमा का पहला मरहला इतवार की सुबह इख्तितामी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन फैसल चुगताई के साथ तलहा शेख, ABN न्यूज़, रायवंड। कसूर में स्मॉग का राज, शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया। शदीद स्मॉग के बायस गले, सांस और दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा कसूर मियां काशिफ से।
बताता चलूं कि मुल्क भर की तरह कसूर में भी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। फ़ज़ाई आलूदगी ने जो है वो कसूर के शहरियों का जीना मुहाल जो है वो करके रख दिया है। तो मैं इस वक्त कसूर शहर के मेन रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे अक्का में देख सकते हैं कि इस वक्त जैसे स्मोक जो है वो धुंध की शक्ल इख्तियार कर गई है। शहरियों का घरों से निकलना जो है वो मुहाल हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्मोक के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्मोक के बाइस बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी स्मोक के हवाले से? स्मोक बहुत खतरनाक हद तक वध चुकी है। मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अखां दे विच बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कोई स्मोक के हवाले नाल बेहतर इंतजाम करे। क्या कहेंगे भाईजान? स्मोक बहुत ज्यादा इसमें ये भी है कि गले में जो पड़ रही है ज्यादा, आंखों की चुमन वगैरह और दीगर बीमारियों की वजह से स्मोक बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पर जी आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि स्मोक जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। स्मोक के जो है तदारक के लिए जो है वो अमली इक़दामात हकीकी मानों में करना होंगे। जी तालीम के साथ खेल में भी बहावलपुर की 13 साला गौस फातिमा ने नेशनल ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड मेडल समेत 22 मेडल हासिल करने वाली तालिबा के मुतालिक जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा साजिद जुहेब से। जी साजिद। जी बिल्कुल, बहावलपुर की तालबा 13 साला गौस फातिमा ने बहावलपुर का सरफका से बुलंद कर दिया। नेशनल ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल विन किया है। हमारे सिस्टर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज ये मेडल लिया है, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि मैंने अपने शहर बहावलपुर, अपने उस्तादा और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल लिए, फिर मैंने पंजाब लेवल पे 22 टाइटल अपने नाम किए और अब मैं पाकिस्तान लेवल नेशनल 17 करोड़ इन्वेस्टर में मैंने आज गोल्ड मेडल लिया है। मुझे गेम करते हुए 9 साल हो गए। मैंने 4 साल की उम्र से गेम स्टार्ट की थी और जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि मैं इंटरनेशनल तक जाऊंगी और अब इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद मैं इंटरनेशनल खेलूंगी। जी, इनका कहना था कि 4 साल की एज में मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की और मैं इंशाल्लाह ताला मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगी और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स भी हासिल करूंगी। जी। पाकपतन में सर्दी की आमद है। शहरियों ने मछली खाने के लिए मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। जी, मौसम की तब्दीली के साथ ही पाकपतन शहर में फिश के जगह जगह स्टॉल लग गए हैं। अब मैं मौजूद हूँ मदीना फिश पॉइंट पर। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि फिश लेने आए हैं। फिश में क्या ऐसी खास वजह है कि ये फिश खरीदते हैं? जी, जैसे कि मौसम की तब्दीली की वजह से हमने रुख किया है फिश पॉइंट की तरफ। यहाँ पे ये शहर की मशहूर दुकान है और यहाँ पर इसकी सबसे जो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे तेल का जो इस्तेमाल है बहुत फ्रेश किया जाता है और बहुत आला क्वालिटी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम फ़िश को लेके जाते हैं। और मौसम की ये मुताबिकत के मुताबिक ये फ़िश बहुत ज़बरदस्त यहाँ से हमें अवेलेबल होती है। शहरी की बात आपने सुनी है कि मदीना फिश पॉइंट पर एक तो आयल खालिस इस्तेमाल किया जाता है और हर तरह की फ़िश यहाँ पर तैयार की जाती है जो बच्चे और फैमिली शौक से खाते हैं। जी। तहसील फोर्ट अब्बास में आवाम की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी काशिफ नवीद पंसोता की क़यादत में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। MPA फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद पंसोता की क़यादत में फोर्ट अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ हो चुका है। इन मंसूबों के तहत 25 करोड़ रुपए से अस्पतालों की बेहतरी ताकि आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर आ सकें। चोलिस्तान के तारीखी कलों की बहाली के लिए भी 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे इन कलों को महफूज किया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 अरब से जायद के मंसूबे बनाए गए हैं। उनमें 86 मोड़ से मंसूरा, 77 मोड़ से डाराबाला और खिच्चीवाला की सड़क की तामीर शामिल है। इसके अलावा देही इलाकों में राब्ता सड़कें भी बनाई जाएंगी, जिससे आवाम को सफरी सहूलियात में बेहतरी मिलेगी। MPA फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद पंसोता का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक फोर्ट अब्बास में मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। गुजरांवाला थाना वांडू के इलाके समूबाला में अफसोसनाक वाकया, मां 2 बच्चों समेत पुरस्कार तौर पर जाँ भाग हो गई। गुजरांवाला के नवाही गांव समूबाला के मेहनत कश मोहम्मद बिलाल का 2 माह का बेटा रहमान अली अपनी वालिदा 25 साला हिना की गोद में अचानक दम तोड़ गया और बच्चे की मौत के कुछ देर बाद बच्चे की मां हिना भी चल बसी। जबकि इसी 2 साला बेटी मीरत ने छोटे भाई और मां की मैयतें देखी तो उसकी हालत भी अचानक बिगड़ गई, जिसे तशवीशनाक हालत के पेश नज़र गोंदलावाला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चंद घंटे ज़ेर इलाज रहने के बाद वो भी जाँ बहक हो गई।
इत्तला मिलने पर वाडू पुलिस ने तीनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स के मुताबिक शुबा है कि तीनों की हलाकत कोई जहरीली चीज खाने या पीने से हुई है। ताहम मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगी। खानेवाल में बीवी को जहर देकर कत्ल करने के इल्जाम में पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोना के इलाके शहरी पर ससुराल की जानिब से अपनी बीवी को जहर देकर कत्ल करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी DHQ अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दी है। जबकि शौहर का कहना है कि घरेलू नाचाकी पर खातून ने गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। डिस्का में तेज रफ्तार डंपर 2 जाने ले गया, ड्राइवर मौके से फरार। डिस्का मौजा गागा के करीब एक तेज रफ्तार डंपर ने पैदल चलने वाले 14 साला तालिब इल्म शाबान को कुचल दिया, जिससे शाबान मौका पर जाँ भाग हो गया। दूसरी जानब थाना बम्बवाला के गांव गढ़ा के करीब में तेज रफ्तार डंपर ने नौजवान को कुचल दिया, जो कि जाँ भाग हो गया। दोनों ड्राइवर्स मौके से फरार। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। कबीरवाला में पुलिस की नायली लड़की की जान ले गई। 15 लड़की ने खुद कॉल की कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस लड़की को कत्ल होने से न बचा सकी। एडिशनल IG जनूबी पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस हरकत में आ गई। नाअहली का मुजाहरा करने वाले SHO की मुद्दईयत में ही लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें 4 अफराद नामजद और 4 नामालूम मुलजमान को शामिल किया गया। मकतूला ने 29 अक्टूबर की शब 9 बजे 15 पर कॉल करके अपने कत्ल का शुबा जाहिर किया। मकतूला ने कॉल पर बताया कि मुझे पंचायती तौर पर घर जबरदस्ती वापस लाया गया है। पुलिस ने कत्ल की इत्तला आने तक कॉलर को तलाश करने की ही कोशिश न की। पसंद की शादी करने वाली लड़की को गुज़िश्ता रोज घर भेजने वाले वडेरे को मुकदमे में शामिल ही न किया गया। लड़की के अहले खाना चेहरे और सीने पर फायर मारकर बेदर्दी से लड़की को कत्ल कर दिया। ABN न्यूज़ ने कत्ल होने वाली लड़की के निकाहनामे की कॉपी हासिल कर ली। लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि DSP कबीरवाला मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां हैं। गुजरा के नवाई इलाके नवा लाहौर चिरागाबाद रोड पर डाकुओं की लूटमार। डाकू ने मुतादिद अफराद को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने पोलियो टीम, महकमे सेहत की खवातीन समेत 6 अफराद को गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू ने मोबाइल फोन, ATM कार्ड्स और हजारों रुपए लूट लिए। दूसरी वारदात में डाकू ने बैंक मुलाजिम मोहम्मद बूटा से मोबाइल फोन और कैश लूट लिया है। तीसरी वारदात में गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद आसिफ इकबाल से मोबाइल और हजारों रुपए छीन लिए गए थे। चौथी वारदात में डाकू ने 4 तालिबात से मोबाइल छीन लिए। 5वीं वारदात में डाकू जाहिद नासिर और रकम से 3 मोबाइल फोन और हजारों रुपए छीन कर फरार हो गए। छठी वारदात में डाकू ने मोचीवाला रोड पर सब्जी और फ्रूट फरोश को दुकानदार को लूट कर 40,000 रुपए लूट लिए। वाक़े की इत्तला पर DSP अख्तर अली ने पुलिस दफ्तरी के हमरा मौका पर पहुंचकर मुतासरीन से इब्तिदाई मालूमात लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। उकाड़ा थाना A डिवीजन के इलाका स्टेडियम रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 मुसल्ला डाकू ने शहरी से खरल चौक के करीब से असलहे के जोर पर तिलाई जेवर, नकदी, शनाख्ती कार्ड छीना और फरार हो गए थे। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब किया। ओकाड़ा स्टेडियम के करीब डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। थाना A डिवीजन पुलिस ने फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस मुकाबले में हलाक डाकुओं की शनाख्त इकबाल वल्द मंसूर और वसीम के नामों से हुई है। हलाक होने वाले डाकू बैनुल अज़लाई डकैत थे, जो जिला लाहौर, साहिबाल और ओकाड़ा में संगीन जराइम में मुलव्विस थे। हलाक होने वाला खतरनाक डाकू इकबाल 40 संगीन जराइम में मुलव्विस निकला। सरगोदा की तहसील साहिवाल में किसान के 18 लाख रुपए से जायद मालियत के मवेशियों को जहर देकर हलाक कर दिया गया, जबकि मकामी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शमसाबाद के रिहायशी किसान ने मुतादिद मवेशी रखे हुए थे, जो अचानक एक एक करके हलाक होना शुरू हो गए। तहकीकात करने पर महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि जानवरों को जहर देकर हलाक किया गया है, जिस पर नामालूम अफराद के खिलाफ थाना साहिवाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा किसान ने RPO और DPO सरगोदा से मुतालबा किया कि मुलजिमान को ट्रेस करके न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके हमारा नुकसान भी पूरा किया जाए। पिपला में ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाँ बहक हो गया। कुंदिया चश्मा रोड पर रिक्शे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 17 साला अलियान शाह जाँ बहक, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया।
मरने वाला स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर ट्यूशन से वापस आ रहा था। हादसे में दोनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रियान शाह जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मिठियाल पिंडी गेब रोड पर स्कूल वैन और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम, ड्राइवर समेत 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए हैं। मिठियाल पिंडी गेब रोड पर ढोक तमर स्टाप के करीब तलबा को स्कूल ले जाने वाली सुजुकी और मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में ड्राइवर समेत 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने जख्मी बच्चों और ड्राइवर्स को अपनी मदद आप के तहत मकामी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दौलताला में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने हिसार शरीफ में मुनक़दा जश्न नेज़ाबाजी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि नौजवानों में तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा खुश आइंद है। नेज़ाबाजी का शुमार खित्ता पोटोहार की रिवायती खेल में होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेलों के फ़रोग़ से सेहतमंद सरगर्मियों में इजाफा होगा। नौजवानों को अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए खेलों से वाबस्ता होकर सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दादा खान के इलाका थाना इल्ला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने दरिया जहलम के अहमदाबाद पतन पर कश्तियाँ चलाने ठेकेदार और मल्लाहों के खिलाफ मौका पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। नासिर महमूद बाजवा ने कहा कि हम खुली कचहरियों के जरिए आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए आवाम के मसाइल को बराह रास्त सुनने और हल करने में मदद मिलती है। खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद दूर दराज इलाके जहाँ की आवाम मेरे पास नहीं पहुँच सकती, उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। साहिवाल में खेलता पंजाब गेम्स के नाम से स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया, जो 14 नवंबर तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलता पंजाब गेम्स के नाम से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और मर्द के अलग अलग खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह शामिल हैं। खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह साहिवाल के जिमखाना ग्राउंड में ADC यासिर फरीद और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राना औरंगजेब ने क्रिकेट खेल कर आगाज कर दिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ मिलकर किया। इस मौका पर इंतजामिया का कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट के इस इवेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों के टैलेंट को बाहर निकालना और दुनिया के सामने पेश करना है। इससे नौजवान नस्ल में खेलों का शौक पैदा होगा और ग्राउंड आबाद होंगे तो नई नस्ल दूसरी दीगर एक्टिविटी छोड़कर खेल की तरफ तवज्जो देगी। आज हम यहाँ खेलता पंजाब की टीम के लिए सब जमा हैं। मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट का इंतहाई अहम इनिशिएटिव है बच्चों में हेल्थी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए और उनके टैलेंट को सामने लाने के लिए। ये 14 दिन जारी रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आगे प्रोविंशियल लेवल पे भी ये जाएंगे और डिविजनल लेवल पे भी। एंड आई विश ऑल द चिल्ड्रन वेरी बेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच। तीन महीने सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी ने हॉकी स्टेडियम का विजिट किया। मीर तारिक हुसैन बुगटी हॉकी मैच से लुत्फानंदोज होते हुए खिलाड़ियों को खूब दाद भी देते रहे। बाद में खिलाड़ियों को हॉकियां गिफ्ट करने का वर्ल्ड चैंपियन और सेलेक्टर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मोहम्मद शफीक खान और साबिका MNA वज़ीर ममलिकत चौधरी असदुर्रहमान भी उनके हमरा थे। लेकिन तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ ग्राउंड मिला है, ये भी स्टेडियम है। हॉकी फेडरेशन का स्टेडियम भी एक ही है जो कराची ईदी स्टेडियम हमारे पास है, और उसमें मैं गया हूँ तो वो भी सारा फटा हुआ था। आपने शायद मीडिया पे देखा होगा उसको। अब मेरा जूनियर कैप जो है 2 दिन में वहाँ लगने वाला है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल हम हॉकी लीग की तरफ भी जा रहे हैं और इंटरनेशनल टीम्स भी यहाँ आ रही हैं। और अगला साल जो है ना वो हॉकी का साल होगा और इंटरनेशनल प्लेयर्स आप देखेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बहुत जल्द हॉकी की रिवाइवल हो चुकी है। सरगोदा में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम खेलता पंजाब के नाम से मुख्तलिफ मुकाबलों का आगाज़ कर दिया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलता पंजाब अंडर 22 का इफ्तिताह कर दिया गया। खेलता पंजाब गेम्स में खिलाड़ियों को पंजाब की तारीख में सबसे ज़्यादा इनामात दिए जाएंगे। पंजाब पाकिस्तान का और हुकूमत पंजाब का ये यूनिक स्पोर्ट्स की फ़रोग के लिए प्रोग्राम है, जिसमें इन्होंने कम से कम 11 लाख से ऊपर तक के जो प्राइजेज़ हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखे हैं। तो एक बहुत बड़ा हैवी प्राइस रखा गया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हमारी जो यूथ इधर यहाँ पे मौजूद है इस वक्त स्टेडियम के अंदर, इनके अंदर जोश व जज्बा भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा हमारे जो इधर यहाँ पे नेशनल लेवल के खिलाड़ी एक जिन्होंने आके इसकी ट्रॉफी की रुनमाई की,
तो बेसिकली इनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि हमारे यहाँ से सरगोदा से और भी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जो है वो हम इंशाल्लाह पैदा करेंगे, और यही अज़म के साथ अगर हम चले तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो स्पोर्ट्स में कहीं किसी से पीछे नहीं रहेगा, और सूबा पंजाब इंशाल्लाह स्पेशली पाकिस्तान में एक यूनिक अपना मुकाम हासिल करेगा। समंदरी में मारूफ शायर और कानूनदान राना अमजद खान की तीसरी बरसी के मौके पर कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरे का इनेकाद हुआ। मुशायरे की सदारत मोहम्मद अशरफ शाकिर ने की। देखिए अरशद गिल की ये रिपोर्ट। समंदरी में मारूफ शायर कानूनदान राना मोहम्मद अमजद खान की तीसरी बरसी के मौके पर एहसान बार हाल में कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मुशायरे में वकला की जानिब से मारूफ शायर कानूनदान राना मोहम्मद अमजद की इल्मी अदबी खिदमत को सराहा गया और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। शोरा कराम ने इन्हें मंजूम हदिया अकीदत पेश किया और अपनी भरपूर नज़में गज़लें सुनाकर सामीन से खूब दाद वसूल की। एहसान बार हाल मुशायरा गा दाद तालियों से गूंज उठा। राना अमजद साहब की याद इसी तरह ही ताज़ा होती रहेगी क्योंकि वो हमारे दिलों में आज भी बस रहे हैं। बहुत अच्छा मुशायरा इस वास्ते रहा कि सामीन बहुत अच्छे सन, उन्होंने भरपूर दाद दी तो पढ़ने का मज़ा भी आया। सरजमीन समुंदरी पे सैकड़ों महफिल मुशायरा मुनक़द हो चुकी हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो कामयाब तरीन 2-3 महफिल मुशायरा हैं उनमें से आज का ये मुशायरा ये सर फरिश्त है। मुशायरे की सदारत बानियों चेयरमैन कारवान शेर व अदब मोहम्मद अशरफ शाकिर ने की। मुंतज़मीन की जानब से शुरका की आमद पर शुक्रिया अदा किया गया। आखिर में राना मोहम्मद अमजद खान की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ अरशद गिल, ABN न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं तो मर्दान में 5 साला बच्ची मिर्जान के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। बच्ची को सगी चची ने कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक बच्ची को कत्ल से कबल तशद्दुद और जिनसी ज्यादती भी की गई है। मर्दान पुलिस ने 5 साला मासूम बच्ची मिर्जान के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मकतूला की चची कत्ल में मुलव्विस पाई गई, जिसने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुदई ने अपनी बेटी मिर्जान के कत्ल की रिपोर्ट थाना तूरू में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज करवाई थी। DPO मर्दान ज़हूर बाबर आफरीदी की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर निगरानी एक तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने एतराफ़ किया कि उसने बच्ची को कत्ल किया। जुर्म की वजह मुलजिमा और मकतूला की वालिदा के दरमियान झगड़े और तकरार को करार दिया गया है। मुल्क भर की तरह एबटाबाद के अवाम भी महंगाई की चक्की में पिस गए, जहां रोजमर्रा की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एबटाबाद में अशियाए ज़रूरियात जैसे सब्जियां, दालें, आटा, चीनी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात के नर्ख आसमान को छू रहे हैं। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। एबटाबाद के दूर अफ्तादा इलाकों में महंगाई का असर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, जहां मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, जबकि ज़िला इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। शहरियों का कहना है कि कीमतों में बेकाबू इजाफे से उनकी जिंदगी के मामूलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से फौरी नोटिस देने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। ताजर बरादरी और आवाम का जिला औरकज़ई सेंट्रल मश्ती मेला बाजार में एहतजाज किया गया। जिला औरकज़ई सेंट्रल मश्ती मेला ताजर बरादरी का शटर डाउन हड़ताल सेंट्रल मश्ती मेला बाजार आज मुकम्मल तौर पर बंद रहा। इस मौके पर ताजर बरादरी का कहना था कि ताजर बरादरी पर बेगुनाह FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी पर भरपूर मजम्मत करते हैं। मुजाहरे के दौरान अवाम और ताजर बरादरी ने मुतालबा किया कि SHO को ट्रांसफ़र करें और मजीद कहना था कि मुतालबात न मानने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रहेगी। बर्फबारी के बायस वादी कागान के सयाहती मकाम गेटी दास के मकाम पर फंसे 5 सयाहों को पुलिस और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पुलिस के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की गाड़ी गेटी दास के मकाम पर फंस गई थी। गाड़ियों में सवार 5 सयाहों को रेस्क्यू करने के बाद उनके रिहायशी इलाकों को रवाना कर दिया गया है। स्कूल के बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेल कूद भी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम है। अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कार्टनेक मर्दान रोड पर मौजूद निजी स्कूल ने एक हफ्ता बच्चों के खेल कूद के लिए वक्फ कर दिया। इफ्तिताह बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान और MPA तारिक कारियानी ने किया। देखिए मुराद अली सरकानी की रिपोर्ट। स्कूल्स के तलबा और तालिबात के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में खेल कूद की सरगर्मियाँ भी अहम है।
इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए काटलंग मर्दान रोड पर वाक़या निजी तालीमी इदारे के प्रिंसिपल सैयद नदीम शाह, MPA तारिक आरियानी और असिस्टेंट कमिश्नर शगुफ्ता सरवर ने सालाना स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने ABN न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज एकरा स्कूल का विजिट किया तो बहुत खुश हुआ है देख के कि इसमें मल्टी टैलेंटेड बच्चे तकरीबन 1400-1500 के तादाद में हैं। तालीमी लिहाज से भी, खेल कूद के लिहाज से भी माशाल्लाह मर्दान में नुमाया कारकर्दगी अदा कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह है। ये 7 दिन हमने खेल के नाम किए हैं। हमारा ये लोगो है कि इंशाअल्लाह सजेंगे खेलों के मैदान और खेलेंगे एकरा के जवान और देखेगा पूरे पाकिस्तान। हमारे अवामी एजेंडा के मुताबिक, वज़ीर-ए-आला साहब के अवामी एजेंडा के मुताबिक ये है कि हमने स्पोर्ट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया गया है। और आज का स्कूल आके मुझे बहुत खुशी हुई है। इधर बच्चों को तालीम के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ खेल के मैदानों में भी इनको भरपूर हिस्सा दिया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स गाला ना सिर्फ तालिब इल्मों की जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद होगी बल्कि फिजिकली तौर पर भी ये स्टूडेंट फिट रहेंगे। ABN न्यूज़ के लिए तहसील काटलंग से मुराद अली सरकानी। खानपुर शहर में सेकेंडरी स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एथलेटिक्स के दिलचस्प मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। एथलेटिक्स के मुकाबलों में तहसील खानपुर के 16 स्कूल्स के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में तहसील खानपुर के 16 स्कूल्स के खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपने शानदार खेल का मुजाहरा किया। सिंध से आपको खबर दें तो सेंट्रल जेल सक्खर की जानिब से आर्ट काउंसिल में कैदियों के हाथों से बनाई गई सामान की नुमाइश लगाई गई, जहां कैदियों के फन को उजागर किया गया। देखिए पराग शर्मा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग आर्ट काउंसिल पर मौजूद हैं, जहां पर सक्खर सेंट्रल जेल में जो कैदियों के हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ सक्खर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट आगा जुल्फकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए सर, कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये क्या क्या चीज़ें नुमाइश के लिए रखी गई हैं? यहाँ टोपियाँ हैं, बेल्ट हैं, उसके अलावा कलेक्शन स्कोप्स के, उसके अलावा किचन्स हैं, तस्वीरें हैं, टिश्यू पेपर बॉक्स हैं और इसके अलावा औरतों के कुछ सेट्स हैं ज्वेलरी के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सामान हैं, चूड़ियाँ हैं, पर्सेस हैं और इसके अलावा ये रलियाँ हैं। नया काम शुरू किया है वो पेंटिंग और स्केचिंग का है जो आप देख रहे हैं। ये हमने 3 महीने हुए शुरू किया है काम, तो उसका हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, जिसकी वजह से हमने ये एग्जीबिशन की है ताकि ये माशरे का ये मुफीद फ़र्द साबित हों और इनको वो रिज़ल्ट मिले, ताकि वो खुशी से और वो 4 पैसे भी मिलें, ताकि वो खुशी से और ज़्यादा मेहनत करें। नेक्स्ट जो हम एग्जीबिशन लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला से वो डबल होगी। जी आपने सुना, इन्होंने यही कहा कि जो कैद हैं वो अपना रोजगार भी कर रहे हैं ताकि उनकी जो सजाएं ख़त्म हो और बाहर आए, मुआशरे में अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर बसर कर सकें। जी आज हिंदू अक़लियती बिरादरी हैदराबाद में भी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली बड़े जोश और जज्बे से मना रही है। हैदराबाद के मंदिरों में पूजा का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर और मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी अक़लियती हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रही है। दिवाली के मौके पर हैदराबाद शहर के जो मुख्तलिफ मंदिर हैं उनमें चरागा किया जा रहा है, दिए रोशन किए जा रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं हैदराबाद के जो है कदीमी जे भवानी मंदिर में। हम इस मंदिर में जो है अक़लियती हिंदू बिरादरी के जो अफराद हैं हम उनसे बात करते हैं कि आप आज दिवाली का त्यौहार किस तरह मना रहे हैं? दीपावली कहते हैं दीप जलाने को, अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी दियों का त्यौहार कहते हैं। तो हम बहुत खुशी से और जोशो खरुश से मनाते हैं। हमारे अहला मेला के साथ मिलके वो अच्छा ताउन भी करते हैं, एक दूसरे को मिठाई वगैरह भी देते हैं। हमने जो पूजा पाठ की है अभी, तो इसमें अपने मुल्क की सलामती के लिए और हमारी पाक फौज के लिए दुआएं करते हैं और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करें। जी हमने जिस तरह जो बात की अक़लियती हिंदू बिरादरी के जो है अफराद थे जो कि दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, उनका कहना है कि वो अपने इस त्यौहार को बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं कर रहे हैं। जी बलूचिस्तान से आपको खबर दें तो चमन में ट्यूबवेल बोर में गिरने वाले बच्चे की लाश को निकाल लिया गया। चमन जिले इंतजामिया और PTMA ने मकामी माहिरीन के साथ मिलकर
32 घंटे की तवील जदोजहद के बाद बच्चे की लाश को निकालने में कामयाब हुए हैं। बच्चे की मौत ट्यूबवेल बोर की तवील गहराई में गिरने के बाद हुई थी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वफाकी वजीर बराए अबूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम की अबान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में 1-on-1 तफसीली मुलाकात हुई। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म व जबर जारी रखे हुए है। गिलगित बल्तिस्तान से आपको बताएं तो 1 नवंबर जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब हाई स्कूल चलास में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर दियामर फयाज अहमद खान थे। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के हुकाम, अमायदीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर दियामर फयाज अहमद और दीगर ने जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खिताब किया। गिलगित बल्तिस्तान 77वां यौम आज़ादी के हवाले से दीगर अजला की त्रास्तोर में भी ज़िले इंतज़ामिया और पाक आर्मी के ताउन से तकरीबात का इनेकाद किया गया। यौम आज़ादी रंगारंग तकरीबात में स्पोर्ट्स फेस्टिवल, पोलो, रस्साकशी, जोर रेस, वॉलीबॉल के साथ सकाफती नुमाइश, रिवायती खानों के स्टॉल भी लगाए गए।